Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. See, in last lecture we were studying about the origins of the party press around 1790s में. Like उस वक्त कैसा था, क्या था, वो अपन ने देखा. See, क्या देखा? Though the founder set in many places, many policies that made it possible that certainly not intended to create a system of partisan journalism. See, उस वक्त क्या है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर अलेक्जेंडर एंड प्रेसिडेंट वाशिंगटन दे बिगैन देयर गवर्नमेंट इन 1789 और उन्होंने अज्यूम क्या किया, न्यूज़पेपर से ही उनकी सारी खबर लोगों तक पहुंच जाती है. Then the Boston businessman John Franco started the Gazette of the United States, a would-be national newspaper. Then, when basic disagreement broke out among the leading members of the cabinet, it was only natural that they reach for journalist weapon. सही बात है. क्यों ऐसे? क्योंकि the Secretary of the State Thomas Jefferson and James Madison helped to create a newspaper, Philip Ferris's National Gazette, to lead the public charge against Hamilton's policy. The National Gazette set a precedent that would be followed again and again in the following century as politicians and parties looked to newspaper as their primary public champions in the battle. Then the Philadelphia Aurora, founded by Benjamin Franklin Beecher, took over as a leading paper and developed a national network of local newspapers that spread the opposition movement's ideas around the country. The Adams administration attempted to crush this network with the Allen and sedition, but it was a backfired. Then, believing that their political beliefs were right and the other party was wrong, but newspaper क्या करती थी, ऐसा किसी का भी सही गलत नहीं बोलती थी. Then the newspapers and policies after 1800. Jefferson victory in the edition of 1800 was a watershed in the growth of press-based politics. बराबर है, सही बात है ना. From 1800 onwards, it was accepted that no serious political candidate would afford to be without a newspaper network, right? क्योंकि न्यूज़पेपर से ही लोगों को पॉलिटिकल खबरें या फिर उनकी एक्टिविटी का पता चलता था. Although valuable financial newspaper network was always a problem, since the basic purpose of partisan newspaper was building political support and not making money. The difference was made up by politicizing the process of printing government documents. After the election of 1800, the first objective of any party faction candidate etc. was to establish newspaper or recruit existing ones. In the race to succeed President James Monroe in 1824, all 5 major candidates depended on newspaper support. That is, the Secretary of War John C. Calhoun had an understanding with the Washington Republican, Secretary of the State John Quincy Adams with National Journal, Secretary of the Treasury William Crawford, the Washington Gazette, etc. Moving towards the next point, a media made president. If ever there was a media made president, it was Andrew Jackson. See, अगर मीडिया से कोई प्रेसिडेंट बना है तो उसका नाम है एंड्रयू जैक्सन. A popular biographer and a song about his war exploits first brought Jackson to prominence. See, a popular biographer and a song about his war exploit first brought Jackson to prominence, and Pennsylvania newspaper editor McFarland and Simpson made Jackson as a serious president candidate in 1823.
A new Jackson journal, the United States Telegram, appeared in Washington. See, एक न्यू जैक्सन जर्नल यूनाइटेड स्टेट में क्या आ गया, टेलीग्राम, appeared in Washington. कहाँ पे आया ये, वॉशिंगटन में. By 1828, every major city and town had a Jacksonia paper and many new journals appeared. See, by 1828, every major city and town, उनके हर मेजर सिटी में, हर छोटे सिटी में क्या था, हैड अ जैक्सोनिया पेपर एंड मैनी न्यू जर्नल्स अपीयर्ड. ये पेपर हर जगह ये पेपर था और क्या है, नए नए जर्नल्स भी आने लगे यहाँ पे. जैक्सन publicly showed his gratitude to the newspaper that supported him by appointing at least 70 journalists to federal office and allowing several key editors to play crucial role in his administration. See, जैक्सन ने क्या है, उसने न्यूज़पेपर की ओर बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड बताया. ग्रैटिट्यूड यानी यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर वालों को बहुत सपोर्ट किया. राइट फ्रॉम एडिटर, जर्नलिस्ट, इन सबको जैक्सन ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. कैसे किया, उन्होंने एटलीस्ट 70 जर्नलिस्ट अपॉइंट किए थे टू फेडरल ऑफिसर्स. जो फेडरल ऑफिसर्स थे उन सब के लिए उसने 70 जर्नल्स अपॉइंट किए थे. और बहुत से एडिटर्स को उन्होंने क्या दिया था, एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन दिया था. उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे क्या है, बहुत से एडिटर दे यूज्ड टू प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. After Jackson, more newspapers became involved in succeeding campaign and more editors in each succeeding administration, with similar trend happening in most states. See, अभी जैक्सन का देख के क्या है, बहुत से स्टेट ने भी जैक्सन की पॉलिसी अपनाना शुरू की. लाइक आफ्टर जैक्सन क्या हो गया, मोर न्यूज़पेपर बिकेम इन्वॉल्व इन सक्सीडिंग कैंपेन. और बाकी बहुत से न्यूज़पेपर आए और वो भी क्या हो गए, इवन दे स्टार्टेड बिकमिंग सक्सेसफुल इन दिस कैंपेन. और क्या है, बहुत से एडिटर्स भी आ गए जो ऑलरेडी सक्सीडिंग एडमिनिस्ट्रेशंस थे, तो और एडिटर आ गए और ये सारे क्या करने लगे, अच्छे से अपना स्टेट रूल करने लग गए. बहुत से स्टेट में ऐसा होने लग गया. बाय द 1830s, जर्नलिस्ट वर स्टार्टिंग टू रन फॉर ऑफिस इन देयर ओन राइट्स. बाय 1830s में क्या हो गया, बहुत से जर्नलिस्ट क्या थे, उन्होंने अपना खुद का ऑफिस भी चालू कर दिया था. अपने हिसाब से उन्होंने अपने लिए एक ऑफिस भी चालू कर लिया था. मतलब कितने होशियार लोग हैं देखो. ज़रा खुद का अच्छा होने लग गया, सब सेटल होने लग गया कि इन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी अलग से चालू कर लिया. द रिमेनिंग क्लोज, द मीडिया पॉलिटिक्स रिलेशनशिप चेंज्ड ओवर दैट पीरियड. सी, अब क्या है, मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो भी चेंज होने लग गया. अभी न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स was severely affected by the industry and corporate revolution that began the 1830s and 1840s. See, newspaper politics was severely affected. अभी ये जो न्यूज़पेपर पॉलिसी था वो क्या है, बुरी तरह से अफेक्ट हो चुका था इंडस्ट्रियल एंड कॉरपोरेट रिवॉल्यूशन में. अब क्यों हो गया था ये सारा, क्योंकि अब मीडिया और पॉलिटिक्स का रिलेशन क्या हो गया है, चेंज होने लग गया है. तो क्या है, अभी ये जो न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स क्या है, इट गॉट अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेट रिवॉल्यूशन. अभी इंडस्ट्री में भी नया नया रिवॉल्यूशन आ रहा था, कॉरपोरेट भी अच्छे से अपना ही हो रहा था. तो अभी न्यूज़पेपर जो सिर्फ पॉलिटिक्स वगैरह दिखा रहा था, तो क्या हो गया है, इट हैड शिफ्टेड टू इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट रिवॉल्यूशन दैट बिगैन ड्यूरिंग द 1830s and 1840s. अब ये सब कब हुआ, everything this took place in the 1830s and 1840s. The new campaign money flowed into the newspaper business. अभी ये जो न्यू कैंपेन मनी, अभी ये जो नया पैसा इंडस्ट्री से कॉरपोरेट रिवोल्यूशन का दिखा रहे, तो उनसे जो पैसा वगैरह आ रहा है, तो ये क्या हो गया, न्यूज़पेपर अपना बिजनेस भी बना लग गए.
क्योंकि नए नए इनकी खबर छापना है। अभी देखो न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो किसी इंडस्ट्री को अपने को अच्छा बताना है तो उसकी अच्छी खबर छापनी पड़ेगी। अच्छी खबर छापने के लिए ये न्यूज़पेपर वाले पैसे लेते थे अच्छे खासे। तो क्या है, ये नए नए कैंपेन बताने के लिए बहुत सा पैसा न्यूज़पेपर बिजनेस में लगने लग गया। It became common for local party leader to publish special newspaper that were completely devoted to politics and existed only for the duration of the campaign. See, अब ये सरासर सही बात हो गई, कॉमन चीज़ हो गई। जो लोकल पार्टी लीडर थे, जो लोकल पार्टी थी वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्पेशल न्यूज़पेपर पब्लिश करना चालू कर दिया। अभी लोकल पार्टी स्पेशल न्यूज़पेपर पब्लिश कर रही है तो क्या करेगी, बट ऑब्वियसली उनके पार्टी के लिए ही, उनके पार्टी का ही सारा बोलेगी कि हमारे पार्टी में ये कैंडिडेट है, ऐसे है वैसे है, बट ऑब्वियसली वो पार्टी का ही बोलेगी, राइट। तो क्या हो गया, और ये कब करते थे, जब कैंपेन करना रहता था, जब इलेक्शन पास में आ जाते थे, एट दैट टाइम दे यूज टू यूज ऑल दिस सोर्सेस एंड ऑल। और ठीक है ना, अभी क्या करेंगे वो लोग भी, उनको अपनी पार्टी का गुणगान गाना है तो उनके लिए एक न्यूज़पेपर उनको पब्लिश करना पड़ा, क्योंकि जो न्यूज़पेपर था वो अभी ये जो इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट रिवॉल्यूशन उसके बारे में दिखा रहा है। इट हैज शिफ्टेड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, द मिथ ऑफ द penny press. In spite of their emphasis on news reporting, the newspaper and that emerged in the 1830s penny press were just as partisan and often much more so because of their financial independence from party politics. See, अपन न्यूज़ रिपोर्टिंग को, न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हाँ, जो दैट विच वॉज इन द 1830s वेर जस्ट एज अ पार्टीशन एंड ऑफन मच मोर, वो एक पार्टीशन था और उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल डिपेंडेंस फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स। अब क्या हो गया है, ये वापस पॉलिटिक्स के ऊपर, न्यूज़पेपर भी पॉलिटिक्स के अंदर वापस शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंस फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स। देयर दिस न्यू जर्नल्स वर सोल्ड ऑन द स्ट्रीट रादर देन बाय सब्सक्रिप्शन। अब ये न्यूज़पेपर कहाँ बेचे जा रहे थे, ये जो न्यूज़पेपर है जो पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है, बोल रहा है, ये कहाँ बेचे जा रहे थे, ये दिस वर सोल्ड ऑन अ स्ट्रीट्स पे बेच रहे थे, rather than only by subscription at a much lower price point that allowed sales of hundreds and thousand copies. See, at a much lower price, एकदम सस्ते में बेचते थे, हाँ। तो क्या है, लोग बहुत ज़्यादा कॉपीज़ लेते थे, लोग अगर उसकी कॉपीज़ मिलती है तो लोग ले भी लेते थे वो। Such huge prints were made possible only by new stream driven press. See, अभी इतनी सारी कॉपीज़ बनाना, राइट, और भी स्ट्रीट पे बेचना, ये सब पॉसिबल रहता था क्या, नहीं, बट ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि एक नया स्ट्रीम आया था, दैट इज़ द ड्रिवन प्रेस। न्यू स्ट्रीम केम अप, दैट इज़ ऑफ द ड्रिवन प्रेस। The new mass circulation paper boasted that they had opened up newspaper reading to the masses for the first time and made the press a great force for political and cultural democracy. See, ये जो न्यू मास सर्कुलेशन पेपर आया था, what happened, ये जो न्यू मास सर्कुलेशन पेपर था, what they had opened up newspaper reading। अभी उन्होंने ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग क्या था, पूरे मासस को ये कर दिया था, लाइक पापा ओपन कर दिया कि लाइक हर कोई ये न्यूज़पेपर रीड कर सकता था। तो क्या है, लोगों को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलने लगी अबाउट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेमोक्रेसी। सही बात है ना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना। देन कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन का मीनिंग थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बाद कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ इन 19th सेंचुरी, वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे आज अपन। तो फिर क्या नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स अपना ये जो बुक है
दैट इज़ द S2 पॉलिटिकल जर्नलिज्म। ये बुक नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। देन विल स्टार्ट विद द अदर टू बुक्स। द अदर टू बुक्स आर ऑफ द निराली प्रकाशन विथ मी, ओके। सॉरी, सक्सेस की है वो 2 बुक्स, नेक्स्ट 2 बुक्स। देन कमर्शलाइजेशन। अभी कमर्शलाइजेशन अपन बोलते तो आपके दिमाग में क्या आता है? कि बाबा मैं ये चीज़ का कमर्शलाइजेशन है मेरे पास, हाँ, नया प्रोडक्ट आया और वो सिर्फ मेरे पास ही है। उसका जो भी करना है एडवर्टाइजिंग एंड ऑल सब मैं ही करती हूँ। आज अपन कमर्शलाइजेशन इतना देखते हैं, ये देखते हैं। अभी कल्याण भेल का देखो, कल्याण भेल, वो कैलाश भेल, उन व्हाट दे आर डूइंग कमर्शलाइजेशन ना। लाइक कल्याण भेल के ब्रांचेस खोल के रखे हैं, और जो कल्याण भेल पानी पूरी खाते हैं वो क्या है, सिर्फ कल्याण में ही जाके खाते हैं, दूसरा किधर नहीं खाते। मतलब कल्याण भेल के इतने डाई हार्ट फैन है कुछ लोग भी। तो क्या है वो, क्या है, दैट इज नथिंग बट अ कमर्शलाइजेशन। Commercialization is the process of bringing new product or service to market. See, commercialization क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे अपन नया प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में ला रहे हैं। The broader act of commercialization entails production, distribution, marketing, sales, customer support, and other key functions critically to achieve the commercial success of the new product or services. See, the broader act of commercialization. See, अभी commercialization मतलब क्या है? सिर्फ नया प्रोडक्ट लाया तो हो जाता है क्या? नहीं, commercialization में उस हिसाब से प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए, यू शुड हैव प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग चाहिए, प्रॉपर सेल चाहिए, कस्टमर का सपोर्ट चाहिए। सबसे बड़ी बात कस्टमर का सपोर्ट चाहिए ना। अगर कस्टमर का सपोर्ट आपको अब कस्टमर का सपोर्ट कब मिलेगा? जब आप अच्छे से प्रोडक्शन करोगे, लाइक प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड मेंटेन करके आप अच्छे से प्रोडक्शन करो। अच्छे से प्रोडक्शन करने के बाद यू शुड डू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक इजीली सबके पास मार्केट में हर अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपरली। देन फिर अब मार्केट में अवेलेबल हो गया तो क्या है, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है? इट इज़ ओनली थ्रू मार्केटिंग। अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो आपका सेल्स होगा और आपका कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। अगर आस्क फॉर द कस्टमर फीडबैक ना, इफ़ यू गेट द फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे, दैट मीन्स द कस्टमर इज़ हैप्पी विथ यू, दैट इज द कस्टमर विल सपोर्ट यू इन योर फ्यूचर एंड ऑल। ये सारे की फंक्शंस हैं। और ये सारे की फंक्शंस क्या है? अपने को लगते बस इतना सा आसान होगा, नहीं, ये आसान नहीं है। ये अचीव करना क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। दैट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। The broader act of commercialization entails production, distribution, marketing, sales, customer support, and other key functions critical to achieve the commercial success of the new product or services. And then moving towards the next one, that is commercialization or commercialization. See, लाइजेशन और सेशन दोनों चीज़ें एक ही बोली है इन्होंने। यहाँ पे Z और S का ही फ़र्क है। देखो, फर्स्ट वन इज़ कमर्शलाइजेशन और सेकंड वन इज़ द कमर्शलाइजेशन। ये क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मेथड इनटू कॉमर्स, मेकिंग इट अवेलेबल टू द मार्केट। सी, कमर्शलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मेथड, नया प्रोडक्ट लाने का या प्रोडक्शन मेथड इनटू कॉमर्स, मेकिंग इट अवेलेबल टू द मार्केट। न्यू प्रोडक्ट या फिर नया प्रोडक्शन मेथड मार्केट में लाने का, कैसे? थ्रू द कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या आ जाएगा फिर आपके यहाँ पे? प्रॉपर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारा फिर कॉमर्स में आता है। तो
ये एक प्रोसेस है जहाँ पे अपन नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर नया प्रोडक्शन मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं. द टर्म ऑफर cannot specially entry into the mass market as opposed to entry into early niche market. See, अब ये टर्म अपन क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर डायरेक्टली यूज़ नहीं करते मास मार्केट में. क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों का क्या रहता है, हर चीज़ का एक मार्केट एस्टेब्लिश किया रहता है, राइट. उस एस्टेब्लिश मार्केट में घुस के अगर आप कमर्शलाइजेशन की बात करोगे तो क्या है, विल इट बी फेयर इनफ? नो, इट वुड बी रादर वेरी डिफिकल्ट. But it also include a move from the laboratory into commerce. बट क्या है, ये एक तरीका भी है जहाँ पे आप रिसर्च वगैरह करके नया प्रोडक्ट या नया प्रोडक्शन निकाल के आप मार्केट में उसको लेके आने का है. भले ही वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोटे से क्वांटिटी में रहो, बट दिस इज नथिंग बट अ कमर्शलाइजेशन. अब कमर्शलाइजेशन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे होगे. अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो कमर्शलाइजेशन कहाँ से आ गया यहाँ पे. तो कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यूज़ भी होता है यहाँ पे. देयर इज अ न्यू कंसेप्ट नाउ, दैट इज द कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ इन द 19th century. There was major transformation of news from political based press to commercial based press in the 19th century. See, अब यहाँ पे क्या आया है, there came a major transformation. अभी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आया है, दैट इज पॉलिटिकल बेस्ड प्रेस टू कमर्शलाइजेशन बेस्ड प्रेस. अभी जो पूरा पॉलिटिकल पे सब कुछ रहता था वो क्या हो गया है, now it has been changed to a commercial based press. According to Gerald Baldeste, significant changes in American society. See, according to Gerald J. Baldeste, significant changes in American society, the national economy and the newspaper industry brought about this dramatic change. See, अभी ये जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, नेशनल इकोनॉमी, इन सब में क्या हो गया, ये न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने क्या लाया, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया. ड्रास्टिक चेंज यानी एकदम सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब ना पासा पलट दिया वैसा. इंक्रीजिंगली न्यूज़ बिकेम मोर वैल्यूड more for its profitability than for its role in informing or persuading the public on political issues. See, increasingly क्या हो गया, न्यूज़ बिकेम मोर वैल्यूड. अब क्या हो गया, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए. हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट हो गए, न्यूज़ पेपर वालों के लिए न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गए, क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट मिल रहा था. और जो वो काम कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं है, बट कितना पैसा मिल रहा है, कितना प्रॉफिट है, उसको इम्पोर्टेंट है. और परसुडिंग द पब्लिक ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, या फिर परसुडिंग द पब्लिक बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज पे. एज एडवर्टाइजर रिप्लेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज एज द चीफ फाइनेंशियल सपोर्ट. एज एडवर्टाइजर्स रिप्लेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. अभी बहुत से अभी पहले क्या न्यूज़पेपर में था, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बोलते थे. अब क्या हो गए, अभी न्यूज़पेपर में अपन ऐड वगैरह भी डालते हैं, तो क्या हो गया, एज एडवर्टाइजर रिप्लेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज एज द चीफ फाइनेंशियल सपोर्ट. और ये क्या था, इट वाज द, ये सबसे बड़ा सपोर्ट था न्यूज़पेपर को, एडवर्टाइजिंग. दे इन्फ्लुएंस न्यूज़पेपर in directing their content towards consumer. से क्या हो गया, they intended newspaper directly towards the consumer. The results were recipes, frictions, contents and features on sports to fashion along more standard news about politics. See, अभी recipes, contents, sports, fashions, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लग गई. और पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ी न्यूज़ रहती थी, बट उसके अलावा इसके बारे में भी न्यूज़ मिलने लग गई. बेल्डास्टी आइडेंटिफाइज 3 important phrases. The partition newspaper of the Jacksonia era. See, the partitions newspaper of the Jacksonia era, the transition of the press in the middle of the century, and
the influence of commercialization of the news in the last 2 decades of the century. See, बैल्डासी क्या है, उसने 3 phases आइडेंटिफाई किए. एक तो द पर्सियन न्यूज़पेपर ऑफ द जैक्सोनिया इरा, दैट वाज फ्रॉम 1825 to 1835. देन द ट्रांजिशन ऑफ द प्रेस. अभी ट्रांजिशन ऑफ द प्रेस अपन ने देखा था ना, लाइक प्रेस अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसके बारे में सब बोलने लगे थे, कॉरपोरेट रिवॉल्यूशन उसके बारे में. तो ये क्या था, द ट्रांजिशन ऑफ द प्रेस इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी. एंड द थर्ड पॉइंट वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ इन द लास्ट 2 decades ऑफ द सेंचुरी. सी, थर्ड पॉइंट क्या था, द इन्फ्लुएंस ऑफ कमर्शलाइजेशन, राइट. कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ था in the last 2 decades of the century. Then at the national level, commercialization of the news contained the revenue generation would damage the country's polity and economy. See, अगर आप नेशनल लेवल की बात करो तो कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यूज़ क्या थी, इससे क्या हो रहा था, रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था न्यूज़पेपर वालों को, राइट. न्यूज़पेपर वालों के बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था क्योंकि नई नई न्यूज़ उनको मिल रही थी और नई नई न्यूज़ उनको पब्लिश करनी थी, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था. बट कंट्री पॉलिटी एंड इकोनॉमी को इसका खतरा बढ़ रहा था. सही बात है ना, अपनी कंट्री के लिए एक तरफ से खतरा ही बढ़ रहा था क्योंकि न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होने लग गए. तो क्या है, जो देश के बारे में एक्चुअल खबर, पॉलिटिक्स के बारे में जो एक्चुअल खबर लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो अब अच्छे से नहीं पहुंच रही है. उसके अलावा बाकी दूसरी खबर भी लोगों तक पहुंच रही है और ये सारा खेल पैसों का था. इसलिए अपना इकोनॉमिक्स, कंट्रीज पॉलिटी एंड इकोनॉमी कुड बी इन डेंजर बोला गया है. विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश दिस टॉपिक. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.